Hello बच्चों, welcome again to your science class. We are discussing the chapters motion, okay? And in this chapter so far we have discussed some important terms like distance, displacement, velocity, speed and acceleration, and also we have seen the graphical representation of motion, okay? And we know some components of graph. What does the graph shows? Okay, while representing a motion, the graph tells us some information which we have discussed. Okay, two important things. Once again I want to remind here that we have discussed so far two types of graphs. Okay, position time graph means distance time graph, and another one is velocity time graph. And in velocity time graph, the slope of the graph tells us about the acceleration, and second thing, the area under the velocity time graph tells us about the distance or displacement covered. ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है उस रीजन का जो एरिया है दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. गॉट इट. आज जो है ये तीन बेसिक जो फंडामेंटल इक्वेशंस है, दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनके बारे में हम बात करेंगे. और फिजिक्स का पूरा मोशन इन तीन फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है. ओके, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ है, ये रिलेशंस इन मोशन इन इक्वेशंस के, और यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ है जो कि आप जानते हैं. दिस इज यू, स्मॉल यू, इट डिनोट्स द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट जिसने मूव करना स्टार्ट किया तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट what was the velocity, that is called initial velocity. V means final velocity, final time पर क्या velocity थी, that is V. A means acceleration, T means time taken, and S means distance traveled. okay, ये terms हैं simple से, इनका क्या relation है, let's see. The motion of a body moving with uniform acceleration can be described with the help of three equations called equations of motion. Okay, the equations of motion are, the first equation is V equals to U plus AT. V means final velocity is equal to U means initial velocity plus product of acceleration and time. V equals to U plus AT. The second equation, okay, this first equation, what is there? Two velocities are there, acceleration and time is there, so it is called velocity time relation. कितने टाइम में अच्छा, ये तीनों जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही वैलिड होती है ना. और कितने टाइम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी, क्या किस वेलोसिटी से क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये जो रिलेशन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मेथड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. So V equals to U plus AT. Second equation is called position time relation. Position time relation है ना, and mathematical expression is S equals to UT plus half AT square. Okay, terms का meaning आप जानते हैं. Third equation is 2AS equals to V square minus U square. Okay, the differences of squares of the velocities is always equals to twice into acceleration twice the product of acceleration and distance traveled. This is called position velocity relation. okay, so ये थ्री रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, और इन इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे. और एक और इम्पोर्टेंट जो थिंग है दैट इज डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस. इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया जा सकता है, और आपके सिलेबस में इसका स्पेशली ग्राफिकल डेरिवेशन दिया हुआ है. तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है तो जनरली इनका ग्राफिकल डेरिवेशन ही पूछा जाता है कि ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को कैसे डेराइव करते हैं.
तो वो हम आज देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम सेपरेटली बात करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन is the velocity time relation, okay, and you see here is a graph of a object moving with uniform acceleration, and earlier its velocity, the initial velocity was u, denoted by graph here, denoted by OA, this is u, यहाँ पर कुछ certain उसका velocity था जिससे move कर रहा था, and during the time t its velocity changes to v. Now its velocity after time t by attaining uniform acceleration a, उसका velocity हो गया v, and this v is denoted by bc, okay. So u velocity था पहले initial velocity, और बाद में ये velocity हो गया v, है ना, in time t by uniform acceleration a. तो इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। कंसिडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, द इनिशियल वेलोसिटी इज u एट a एंड फाइनल वेलोसिटी इज v एट b, ओके। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है। अब क्या किया गया है, परपेंडिकुलर लाइंस बी सी एंड बी ई आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट बी, या बी से वाई एक्सिस पर बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट से बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओके। ये इसके करस्पॉन्डिंग टाइम और इसकी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है ये। सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज ओ ए एंड फाइनल वेलोसिटी इज बी सी। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ ए, इसका जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इज BC, and also we can say that final velocity is OE. OE and BC both represent final velocity, okay, and OA and CD both represent the initial velocity, okay, दोनों सेम है ना। Draw AD parallel to OC, ये OC के पैरेलल एक AD ड्रॉ किया गया है, ये है ना। अब ये OC क्या डिनोट कर रहा है, OC is telling us about the time taken, and OC is equal to AD. Both are telling us about the time t. Got it? So OA equals to CD. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ग्राफ में। OA equals to CD, and ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U. Okay, U equals to OA equals to CD. Got it? OE equals to CB इक्वल्स टू v, ये फाइनल वेलोसिटी है। गॉट इट? टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी, कितना टाइम लगा है इस चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इन द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। वेयर इज बी सी, दिस बी सी, बी सी जो v को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ओके। इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। अब इसको डी सी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओ ए से, सेम चीज़ है ना, दोनों एक ही है, ओके। तो बी सी इक्वल्स टू हो गया बी डी प्लस ओ ए, एक ही बात है, यस। सब्सटीट्यूटिंग बी सी इक्वल्स टू वी एंड ओ ए इक्वल्स टू यू, हमने पहले भी बात की, दिस बी सी इज इक्वल टू वी और ओ ए इक्वल्स टू यू। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये जो इक्वेशन था हमारा बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए, अब क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू बी सी को क्या नाम दिया हमने, वी, वी इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, ओ ए क्या है, यू है ना। तो मतलब बी डी इक्वल्स टू बी सी मीन्स वी माइनस डी सी मीन्स यू, ओके। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन बन गया कि ये क्या है, बी डी इस फाइनल वेलोसिटी और इस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस ही है ना ये बी डी, तो वही इक्वेशन यहाँ पर आया है, बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू। बट वी माइनस यू मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये उसी का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ये, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ये जानते हैं ना। सो
यहाँ पर फॉर्मूले में एक्सेलरेशन हो गया, ए चेंज इन वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ में, देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी, तो यहाँ पे बी डी पुट कर दिया v माइनस यू की जगह या चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर। बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, ए डी इज टाइम डिवाइडेड बाय ए डी या ओ सी दोनों एक ही बात है। ओके, जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और ओ डी या ओ सी क्या है, ए डी या ओ सी क्या है, टी है, तो बस ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। सिंपल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, फर्दर इट इज ट्रांसफर्ड, सो वी गेट दिस रिलेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। गॉट इट। इसको एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल फार्मूला से डायरेक्ट इसको गेन किया जा सकता है, इसको डेराइव किया जा सकता है, बट यहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड से करना था, तो आपको बी डी को शो करना पड़ेगा, दिस बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाकर आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन डराइव हो जाएगा। गॉट इट। नाउ कम टू द second equation. Again the same graph is there, same condition is there, one object moving starting with the initial velocity u, after time t, and by uniform acceleration a it attains a final velocity v, which are shown in the graph. We have taken the perpendicular from point b to y axis and from b to x axis, and also we have joined this a and d. Okay, so in this case again the same thing is there, oa equals to dc, which shows initial velocity u, this oe equals to bc means final velocity v, oc equals to ad, it shows the time taken. Got it. Now what happens, हमको यहाँ सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, यू सी दिस इज द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड द एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया है ना, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस चेंज इन वेलोसिटी। गॉट इट। दो बातें हमने की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये जो स्लोप है इट शोज एक्सेलरेशन, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ इट शोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ही हमें शुरू करना है। हियर इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज द एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इस रेक्टेंगल का एरिया ही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो एस मीन्स डिस्टेंस, एस इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओके, ये जो ट्रेपीजियम दिख रहा है इसका एरिया होगा ओ ए बी सी। यहाँ पर आपको एक बात रखना है कि व्हेन वी आर डेराइविंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ट्रेपीजियम का हम एरिया एक साथ नहीं निकालेंगे, इसको दो फर्दर फिगर्स में अलग अलग देखकर ही हम डेराइव करेंगे। वन इज दिस ट्राइंगल ADB and another is this OADC, this rectangle. Okay, so area of this trapezium equals to area of this triangle plus area of this rectangle. Got it. Now area of this rectangle OADC, OADC का एरिया का क्या होगा, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, ओ ए इंटू ओ सी, यही होगा इसका एरिया। तो ये हमने इसके फार्मूला में पुट कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, ओ सी इंटू ओ ए, कोई डाउट है ना, यही होगा। प्लस इस रेक्टेंगल का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ए डी हो गया, और हाइट क्या है इसकी, बी डी हो गया, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। ओके, तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एस। नाउ ये हमें पता है ओ ए इक्वल्स टू वॉट, यू है इनिशियल वेलोसिटी ना, ओ ए या डी सी। देन
ओ सी या ए डी इक्वल्स टू टी, ये ओ सी किसको डिनोट कर रहा है, टी को, ओके। बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ये जो बी डी है, बी डी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है, बी डी मीन्स डिफरेंस इन वेलोसिटी, वी माइनस यू, यही है बी डी, ओके। और v minus u by first equation of method we also know the first equation of motion we also know that v minus u is equal to at, okay। ये फर्स्ट इक्वेशन था ना, v minus u equals to at। तो इन रिलेशंस का यूज़ करके हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ ए की जगह पर हमने रख दिया u, ओ सी की जगह पर रख दिया हमने t, तो ये हो गया यू टी प्लस 1/2 इंटू ए डी था, ए डी इज रिप्रेजेंटिंग टी, ए डी को रिप्लेस किया हमने टी से, और बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, वी माइनस यू, और वी माइनस यू इक्वल्स टू क्या हुआ, ए टी, तो बी डी का वैल्यू हमने रख दिया ए टी। तो ये सिंपल हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है ना। हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल है, बस ये ग्राफ का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बस ग्राफ को ड्रॉ करना है। और ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का आपको इस ट्रेपीजियम का एक साथ एरिया नहीं लिखकर इनके अलग अलग एरिया आपको निकालना है और वैल्यूज पुट कर देना है। तो सिंपली ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ओके। Now third equation of motion, third equation which is also called position velocity relation। आई बात समझ, the same thing is there, one object moving with velocity, initial velocity u after time t and attaining uniform acceleration a, its velocity becomes v, and the graph is plotted here to represent its motion, and the perpendiculars are drawn from point B to y-axis and x-axis. The same kind of graph is used in derivation of all the three equation of motions, okay। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक्सेलरेशन के फार्मूला का यूज़ करना था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरे ट्रेपीजियम का एक साथ नहीं करके आपने ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया आपने उसमें कैलकुलेट किया है, तो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हुआ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम एस मीन्स डिस्टेंस का ही आपको फार्मूला लगाना है, एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, बट यहाँ पर जो फार्मूला आप पुट करेंगे उसमें ये ट्रेपीजियम का एक साथ आपको ट्रेपीजियम का ही फार्मूला लगाकर एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज द एरिया ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी ही वो एरिया होगा, इस एरिया का जो मेजरमेंट है इट विल टेल अस अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी, ओके। सो एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स, यहाँ पर पैरेलल साइड ओ ए है और बी सी है, ओके, इनटू हाइट, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ओ सी होगा, है ना, तो यही है 1/2 इंटू हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही ट्रेपीजियम का फार्मूला है, वही फार्मूला सेम यहाँ पर यूज़ किया गया है। एस इक्वल्स टू पैरेलल साइड्स कौन सा है, इनका सम, पैरेलल साइड है ओ ए एंड बी सी, कुछ क्लिक कर रहा है, ओ ए मीन्स यू एंड बी सी मीन्स वी, यस, तो ये पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर, ओ सी, ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टी को, यस, तो ये फार्मूले में रख दिया डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगा दिया हमने, सिंपल, और कुछ नहीं किया है। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ओ ए क्या है, ओ ए का वैल्यू यू, बी सी का वैल्यू क्या है वी, ओ सी का वैल्यू क्या है टी, बस उनका वैल्यूज रख दो। वी गेट एस इक्वल्स टू
ओ ए और बी सी को रिप्लेस कर दिया यू और वी से, ओ सी को रिप्लेस किया हमने टी से, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर हमें टी का वैल्यू चेंज करना है। टी को रिप्लेस करेंगे हम किससे? अगेन रिकॉल द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हम जानते हैं a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी था। t को रिप्लेस कर दो तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन a है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू वी प्लस यू, जो कि यहाँ ऑलरेडी था। अब t का वैल्यू यहाँ रख दिया हमने v माइनस यू, ये वाला वैल्यू रख दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो v माइनस यू अपॉन a हमने t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया इस वाले रिलेशन में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये a इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेम काइंड का ग्राफ यूज करना है, सेम कंडीशन है ग्राफ की। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ यूज़ किया है, बट ये ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया का फार्मूला न लगा के हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल का सेपरेट फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, तो सेकंड इक्वेशन डेराइव हो गया। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया? सेम डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर इनको सेपरेट हमने फार्मूला एरिया कैलकुलेट नहीं किया, रादर वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इससे हमारा थर्ड इक्वेशन, उसके बाद हमने टी के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और हमारा ये थर्ड इक्वेशन जो है वो डेराइव हो गया, है ना। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा। सिंपल है ना, इसको आप डेराइव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो भी समस्या हो वो पूछिए। देन वन अनदर कॉन्सेप्ट, इसका आपको एक इंट्रोडक्शन है, दैट इज सर्क्यूलर मोशन। ओके, इफ एनीबॉडी इज इन मोशन and it is if we consider its velocity, then velocity having two components, one is magnitude and another one is direction. Okay, earlier we have discussed that velocity is a vector quantity. Okay, and अगर कोई बॉडी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा, देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट देयर। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? या तो उसकी स्पीड चेंज हो, उसके स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। जिससे घड़ी की जो हैंड क्लॉक्स हैं, जो क्लॉक के हैंड्स हैं, वो अगर मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्पीड तो उनकी थ्रू आउट द टाइम मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन टिप का जो डायरेक्शन है मोशन का, वो डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। अगर किसी मूविंग बॉडी का स्पीड ना भी चेंज हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब भी हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट इट? सो सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में भी एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। What is uniform circular motion? If a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Okay, circular direction में motion हो रहा है और speed कैसी है? uniform speed है, तो इस motion को हम uniform circular motion कहेगा। इस point के motion को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके motion को भी देख रहे हैं आप, है ना। अब क्या समझते हैं, यहाँ पर acceleration exist कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका speed same है ना।
अब हम सोचेंगे कि भाई स्पीड सेम है, तो मीन्स यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन जीरो। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि हर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है मोशन की वो टेंजेंशियल है, स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर इस तरह से हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, टुवार्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। मतलब ये इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। मीन्स इसमें हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तभी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। गॉट इट? Uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion a body continuously changes its direction. हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स इट इज accelerated motion. The circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. ये आप जानते हैं, सर्कल का circumference is equal to 2 pi r. If a body takes time t to go one round this in the circular path, then the velocity v is given by, इस रिलेशन से हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सर्कल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, एंड टाइम कितना लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस रोटेशन। ओके, सो v इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन टी, है ना। इस तरह के सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली वो ट्रू सर्कुलर पाथ में नहीं होते हैं, फिर भी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। अगर टिप को हम मूविंग फैन की ब्लेड की टिप्स या क्लॉक्स के हैंड की टिप को अगर कंसीडर करें, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रही होती हैं। ओके, सो बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. That's why uniform circular motion is considered as accelerated motion. Okay, so this is all about your chapter, है ना। और न्यूमेरिकल्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।